آج ہم ایک ایسی پاکستانی کمپنی کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں ملک کو پہیوں پر رکھتی ہے، بلوچستان ویلز لمیٹڈ یعنی BWL۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے بلوچستان ویلز، پاورنگ پاکستانز آٹوموٹیو انڈسٹری۔ اس کے کچھ حصے ہیں اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کمپنی شروع کیسے ہوئی، کیا کرتی ہے آج کل، مالی طور پر کہاں کھڑی ہے اور پاکستان کی صنعت میں اس کا کیا مقام ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی جیسا آپ نے کہا پہیوں کی ہے، تو یہ شروع ہوتی ہے ہب چوکی سے، کراچی سے تھوڑا باہر۔ اچھا، وہیں ان کا پلانٹ ہے جہاں یہ ویلز بنتے ہیں، مسافر کاروں کے لیے بھی، ٹریکٹرز کے لیے بھی اور بڑی کمرشل گاڑیوں کے لیے بھی۔ یعنی جو گاڑیاں سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں ان کے پہیے شاید یہیں بن رہے ہوں گے۔ بالکل، اکثر ہم سوچتے نہیں کہ یہ پرزے کہاں سے آتے ہیں۔ تو BWL اس آپ کہہ لیں پوشیدہ انفراسٹرکچر کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ 1980 میں یہ کمپنی بنی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں آٹو انڈسٹری ابھی نئی تھی۔ جی بالکل، ابتدائی مراحل میں تھی۔ تو اس وقت ایسی کمپنی لگانا یہ واقعی ایک بڑا قدم تھا۔ بڑا قدم کیوں؟ اس وقت کیا خاص چیلنجز تھے؟ دیکھیں، 1980 کے دہائی میں یہاں مقامی انجینئرنگ، خاص طور پر آٹو پارٹس بنانا بہت کم تھا۔ زیادہ تر چیزیں تو باہر سے آتی تھی۔ اچھا، یعنی امپورٹ پر انحصار تھا۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ تو BWL کا قیام صرف ایک فیکٹری نہیں تھی، یہ ایک طرح سے خود انحصاری کی طرف قدم تھا، اور اس میں سب سے اہم بات تھی ان کا تکنیکی اشتراک۔ ہاں، وہ GKN سینکی لمیٹڈ UK کے ساتھ ہے نا؟ بالکل، GKN سینکی، اور یہ اس وقت پہیوں کی ٹیکنالوجی میں دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک تھی۔ تو یہ صرف ٹیکنالوجی لائے یا اس پارٹنرشپ کا کچھ اور بھی فائدہ ہوا؟ نہیں، یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آپ سوچیں، 80 کی دہائی میں ایک پاکستانی کمپنی GKN جیسے بڑے نام کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات۔ اس سے BWL کو ایک دم سے عالمی پہچان ملی، ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ملی، پروڈکشن کے طریقے پتہ چلے اور ان کی ساکھ بھی بن گئی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کمپنی شروع سے ہی انٹرنیشنل معیار کا کام کرنا چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے شاید بعد میں ISO سرٹیفیکیشنز وغیرہ لینا بھی آسان ہوا ہو۔ یقیناً اس نے بنیاد رکھی، اعتماد پیدا ہوا۔ اور پلانٹ لگایا انہوں نے ہب انڈسٹریل زون بلوچستان میں۔ یہ جگہ کیوں چنی؟ کراچی کے قریب؟ جی، ہب اس وقت ایک نیا صنعتی علاقہ بن رہا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو جیسا آپ نے کہا، کراچی پورٹ اور شہر کے قریب تھا، تو مال لانے لے جانے میں آسانی تھی۔ ٹھیک۔ دوسرا، یہ بلوچستان میں تھا جو کہ نسبتاً کم ترقی یافتہ صوبہ ہے، تو وہاں صنعت لگانے سے مقامی ترقی اور روزگار میں بھی مدد ملی۔ اور جگہ بھی کافی بڑی لی، ذرائع کے مطابق 97,000 مربع میٹر، جس میں سے 16,000 کورڈ ہے۔ جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شروع سے ہی ایک بڑا منصوبہ تھا اور شاید مستقبل میں مزید پھیلانے کا بھی ارادہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد مضبوط تھی، بین الاقوامی پارٹنرشپ، صحیح جگہ پر پلانٹ۔ اب آتے ہیں ان کی مصنوعات پر۔ وہ کیا بناتے ہیں جو آج کل گاڑیوں میں لگ رہا ہے؟ بنیادی طور پر تو ڈسک ویلز، سٹیل کے پہیے۔ اچھا۔ مسافر کاروں کے لیے، ہلکی اور بھاری کمرشل گاڑیوں کے لیے، اور ٹریکٹرز کے لیے اگلے پہیے بھی اور پچھلے بھی۔ یعنی تقریباً ہر قسم کی گاڑی کور ہو رہی ہے؟ جی، آپ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان میں جو بھی بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں، جنہیں OEMs کہتے ہیں، وہ سبھی BWL کے گاہک ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان کی مارکیٹ میں کتنی پہنچ ہے۔ اور کوالٹی کیسی ہے؟ ISO سرٹیفیکیشنز کا ذکر ہے، ISO 9001 اور 14001۔ کیا یہ واقعی اہم ہے؟ اوہ، بہت اہم ہے۔ آج کل تو ان کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ ISO 9001 کا مطلب ہے کہ ان کا پورا پروڈکشن کا نظام ایک معیار کے مطابق ہے، مستقل کوالٹی دے رہا ہے۔ جو بڑے خریدار ہیں OEMs، ان کے لیے یہ اعتماد کی بات ہے۔ انہیں پتا ہے کہ پہیے محفوظ ہوں گے، معیار پر پورے اتریں گے۔ اور وہ دوسرا ISO 14001 ماحولیات والا؟ جی، وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی ماحول کا خیال رکھ رہی ہے، اپنی فیکٹری کے اثرات کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جیسے بجلی بچانا، کچرا کم کرنا وغیرہ۔ یہ تو اچھی بات ہے، ذمہ داری بھی، اور شاید بزنس کے لیے بھی اچھا ہو۔ بالکل، آج کل سرمایہ کار اور بین الاقوامی خریدار یہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوالٹی اور پائیداری دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا کاروباری پہلو دیکھتے ہیں۔
हेड ऑफिस कराची में, फैक्ट्री हब में। ये तो आम मॉडल है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कराची मुल्क का कारोबारी मरकज है, तो वहाँ सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह के दफातर होना मनतिकी है। सही। और हब में फैक्ट्री के लिए जगह भी है, लेबर भी, और शायद हुकूमत की तरफ से कुछ सहूलियतें भी हों, तो ऑपरेशंस वहाँ होते हैं। अब आते हैं जरा नंबर्स पर। माली आदादो शुमार, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.59 अरब रुपए, कुल शेयर्स 13.3 मिलियन, और एक चीज लिखी है 55% फ्री फ्लोट। ये फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट का मतलब है वो शेयर्स जो आम पब्लिक के लिए स्टॉक मार्केट में खरीद और फरोख्त के लिए मौजूद हैं। अच्छा। और 55% खास तौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये काफी अच्छा समझा जाता है। क्यों? इसका क्या फायदा? इसका मतलब है कि शेयर्स आसानी से खरीदे बेचे जा सकते हैं, लिक्विडिटी अच्छी है। दूसरा ये कि कंपनी की मिल्कियत सिर्फ चंद बड़े लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि बहुत से छोटे सरमायाकार भी शामिल हैं। तो शफाफियत ज्यादा होती है? जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये अच्छा समझा जाता है, और ये सरमायाकारों के एतमाद को भी जाहिर करता है। और ये 2.59 अरब रुपए की मार्केट कैप, ये कितनी बड़ी कंपनी बनाती है BWL को? ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उनकी कुल कीमत है। इस हिसाब से ये एक दरमियाने साइज की कंपनी है जो ऑटो सेक्टर में उनकी अहमियत को जाहिर करती है। चलें, अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, हालिया माली कारकर्दगी। 2024 में सेल्स थी 2.17 अरब, जो 2025 में बढ़कर 2.30 अरब हो गई। ये तो ठीक इजाफा है। जी, सेल्स बढ़ना तो हमेशा अच्छा होता है, खासकर अगर मार्केट मुश्किल हो। ये दिखाता है कि उनकी चीजों की मांग है, लेकिन असल कहानी मेरे ख्याल में मुनाफे में है। बिल्कुल, मुनाफा टैक्स के बाद वाला, वो 240 मिलियन से बढ़कर 315 मिलियन हो गया। जबरदस्त। जी। और अर्निंग्स पर शेयर EPS, जो सरमायाकार बहुत देखते हैं, वो 18.05 रुपए से बढ़कर 23.67 रुपए हो गई। ये तकरीबन 31% इजाफा बनता है। हाँ, ये 31% EPS ग्रोथ वाकई बहुत मुतासर कुन है। मैन्युफैक्चरिंग में इतना इजाफा, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? देखिए, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कंपनी ज्यादा कमा रही है, बल्कि फी शेयर ज्यादा कमा रही है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। शायद सेल्स बढ़ने के साथ साथ उन्होंने खर्चे बेहतर कंट्रोल किए हों, या प्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंट हो गई हो, या कीमतें बढ़ाने का फायदा मिला हो। कुछ भी हो, ये अच्छी मैनेजमेंट की निशानी है। और मार्जिन्स का भी जिक्र है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 24.6%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.7%। ये अच्छे हैं। जी, पाकिस्तान के हालात में जहां महंगाई, बिजली के मसले, तलब में उतार चढ़ाव रहता है, ये काफी मजबूत मार्जिन्स हैं। अच्छा। 24.6% ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि माल बनाने की लागत निकालकर उनके पास तकरीबन 1/4 बचता है। ठीक। और 13.7% नेट मार्जिन, यानी सारे खर्चे, सूद, टैक्स वगैरह निकालकर जो बचता है, वो भी बहुत सेहतमंद है। मतलब कंपनी मजमूई तौर पर मुनाफे में चल रही है। और इस मुनाफे का फायदा शेयर होल्डर्स को भी दे रहे हैं। लिखा है कि बाकायदगी से डिविडेंड देते हैं, और सितंबर 2025 में 70% फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया। बिल्कुल, ये सरमायाकारों के लिए बहुत अहम है। डिविडेंड मिलना एक तो बराह रास्त फायदा है, दूसरा ये कंपनी के मुस्तहकम होने और मुस्तकबिल पर एतमाद की अलामत भी है। 70% डिविडेंड तो काफी अच्छा है। जी, ये आम तौर से शेयर की असल कीमत फेस वैल्यू पर होता है। ये दिखाता है कि कंपनी अपनी कमाई अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रही है। तो मजमूई तौर पर माली तस्वीर काफी मजबूत है। तो माली तौर पर तो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इन नंबर से हटकर ये कंपनी पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है? इसका क्या असर है? इसकी अहमियत कई तरह से है। सबसे पहले तो ये कि ये मुकामी मैन्युफैक्चरिंग या मेड इन पाकिस्तान की एक कामयाब कहानी है। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क इंपोर्ट बिल और तजारती खसारे से परेशान है, BWL जैसी कंपनियां जो पहियों जैसे अहम पुर्जे यहीं बना रही हैं, वो कीमती फॉरेन एक्सचेंज बचाती हैं। और ऑटो इंडस्ट्री की सप्लाई चेन भी मजबूत होती है। बिल्कुल। फिर रोजगार है। सैकड़ों लोग तो बराह रास्त काम करते होंगे, और फिर बिलवास्ता रोजगार भी, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले, खाम माल वाले वगैरह। और इससे भी अहम, यहाँ मुकामी तौर पर इंजीनियरिंग और टेक्निकल हुनर पैदा होता है। अच्छा, यानी स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है। जी,
यहाँ जो इंजीनियर और टेक्नीशियन काम करते हैं वो जदीद तरीके सीखते हैं जो पूरे मुल्क के काम आते हैं। और वो बलूचिस्तान वाला नुक्ता जो आपने पहले कहा था? जी, वो बहुत अहम है। अक्सर सारी सनती तरक्की पंजाब या सिंध के बड़े शहरों में ही नजर आती है। सही। BWL का हब में कामयाबी से चलना ये दिखाता है कि बलूचिस्तान में भी सनत लग सकती है, चल सकती है। इससे वहाँ के लोगों को नौकरियां मिलती हैं, इलाके में पैसा आता है। ये इलाकाई तरक्की है। तो ये कंपनी एक तरह से सनती लचक की मिसाल भी है। बिल्कुल। ये तो बहुत अहम पहलू हैं। अब जरा आगे देखते हैं, मुस्तकबिल में क्या है। पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर बदल रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज। तो एक कंपनी जो दहाइयों से स्टील के पहिए बना रही है, उसके लिए ये तब्दीली क्या माने रखती है? खतरा है या मौका? ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद BWL की लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है। मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें हैं, खतरा भी, मौका भी। खतरा इसलिए कि अगर वक्त के साथ नहीं बदले तो पुरानी चीजें कौन खरीदेगा। सही। लेकिन मौका इसलिए कि हर नई टेक्नोलॉजी नई जरूरतें लाती है। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वो अक्सर भारी होती हैं बैटरी की वजह से। अच्छा। इनमें टॉर्क फौरन मिलता है तो पहियों पर ज्यादा जोर पड़ता है। इसका मतलब है कि EVs के लिए शायद ज्यादा मजबूत पहिए चाहिए। लेकिन वजन भी तो कम करना होगा रेंज के लिए। बिल्कुल, मजबूत भी हों और हल्के भी। तो शायद स्टील से हटकर एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स की तरफ जाना पड़े। तो क्या BWL को अलॉय व्हील्स बनाने पड़ेंगे? यकीनन उस पर सोचना पड़ेगा, बल्कि शायद सोच रहे हों। लेकिन बात सिर्फ मटेरियल की नहीं है। आगे चलकर शायद स्मार्ट व्हील्स का जमाना आए। स्मार्ट व्हील्स वो क्या होते हैं? ऐसे पहिए जिनमें सेंसर्स लगे हों जो टायर प्रेशर, टेम्परेचर, सड़क कैसी है, ये सब बताएं। और पहिए गाड़ी के दूसरे सिस्टम्स जैसे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, उसमें भी मदद कर सकते हैं। यानी पहिया सिर्फ घूमने वाला पुर्जा नहीं रहेगा, बल्कि एक ज़हीन सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। इसके लिए BWL को रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में बहुत पैसा लगाना होगा। नई पार्टनरशिप्स करनी होंगी, लोगों को नई चीजें सिखानी होंगी। ये तो बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। जी, चैलेंज तो है, लेकिन BWL का माजी देखें। GKN के साथ उन्होंने कामयाबी से टेक्नोलॉजी ली और अपनाई। हाँ, ये बात तो है। और उनकी हालिया माली हालत भी मजबूत है, तो शायद वो मुस्तकबिल की सरमायाकारी करने की पोजीशन में है। तो सफर स्टील रिम्स से शुरू हुआ था, अब शायद स्मार्ट व्हील्स की तरफ जाए। बहुत दिलचस्प। तो आज की बातचीत को अगर समेटें, हमने देखा कि बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड 1980 में कैसे शुरू हुई GKN के साथ मिलकर। जी। फिर हमने देखा कि वो कैसे पाकिस्तान की तकरीबन हर किस्म की गाड़ी के लिए पहिए बनाते हैं और ISO सर्टिफिकेशंस के जरिए क्वालिटी और माहौल का भी ख्याल रखते हैं। और उनकी माली कारकर्दगी, खास तौर पर वो 31% EPS ग्रोथ, अच्छे मार्जिन्स, 55% फ्री फ्लोट और बाकायदा डिविडेंड, ये सब एक बहुत ठोस तस्वीर दिखाते हैं। जी हाँ, और सबसे अहम बात, पाकिस्तान के लिए उनकी अहमियत, मकामी सनत, कम इंपोर्ट, नौकरियां, हुनर और बलूचिस्तान में तरक्की, ये वाकई एक मेड इन पाकिस्तान की काबिल फख्र मिसाल है। यकीनन ये सारे पहलू मिलकर BWL को पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अहम असासा बनाते हैं। तो इस गुफ्तगू के आखिर में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे सोचने के लिए। सवाल ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इस बदलती हुई दुनिया में BWL जैसी कंपनी जिसकी जड़ें रवायती स्टील व्हील बनाने में है, वो खुद को कैसे बदलेगी? क्या उन्हें सिर्फ पहियों पर ही फोकस रखना चाहिए या अपनी इंजीनियरिंग की महारत को इस्तेमाल करके गाड़ियों के दूसरे पुर्जों या नए सॉल्यूशंस की तरफ भी जाना चाहिए? वो अपनी पुरानी महारत और तजुर्बे को नई टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ सकते हैं ताकि ना सिर्फ जमाने के साथ चलें बल्कि आगे भी बढ़े?